Morning to all. Today we'll discuss one important topics on revaluation account, that is revaluation of assets and reassessment of liabilities. As you know, at the time of admission of a new partner, revaluation account is prepared to revalue all assets and liabilities of the firm before admission of a partner. That is called revaluation of assets and reassessment of liabilities. Now the question is, why we prepare revaluation account? What is the need of revaluation? At the time of admission of a new partner, it always desirable to ascertain whether the assets and liabilities of the firm are shown in the books at the current value or not. That means when a new partner is admitted in the partnership firm, it is required to find out the actual value of assets and liabilities of the partnership firm. Another one important need of revaluation account is it is prepared to show correct values of the assets and liabilities. It is also help to see for any unrecorded assets and liabilities of the firm. These are the basic need for revaluation account. Once again, why revaluation account is prepared? Revaluation account is prepared to know the actual value of assets and liabilities of the firm before the admission of a new partner, to show the correct values of the assets and liabilities, and if any unrecorded assets, unrecorded liabilities of the firm not recorded, it should be recorded before the admission of a new partner. Now the question is, what is the outcome of revaluation account? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं और बनाने का बेनिफिट क्या है, उसका आउटकम यानी कि रिजल्ट क्या है? देयर कैन बी गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, यानी कि जब हम अपना बैलेंस शीट का किसी भी एसेट और लायबिलिटी का कंपेयर करंट वैल्यू के साथ, मार्केट वैल्यू के साथ करेंगे, तो either the value will reduce or value of increase. Suppose प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू हमारा बैलेंस शीट में दिया गया है 50,000, 50,000, बट मार्केट वैल्यू इज गिवन 70,000. दैट मीन्स 20,000 शुड बी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी. तो इस तरह से एसेट एंड लायबिलिटीज का इंक्रीज एंड डिक्रीज होने के बाद जो मेरा रिजल्ट मिलता है, दैट इज कॉल्ड आइदर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन लॉस. एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड रिवैल्यूएशन लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो. वेरी इंपॉर्टेंट, द लॉस और गेन इज ट्रांसफर्ड टू partner's capital account of old partner in the old ratio.
यानी कि रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? Now, come to the point, accounting treatment of revaluation. For increase in the value of asset, जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इंडिविजुअल एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट करेंगे। एसेट इंक्रीज होने से एसेट विल बी डेबिटेड। फॉर एसेट इंक्रीज एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट when the value of asset increase. Second, for decrease in the value of asset, then opposite entry will pass. Increase होने पे किए थे asset account debit to revaluation, तो decrease होने पे करेंगे revaluation account debit to asset account. Suppose building increase, तो एंट्री होगा building account debit to revaluation, and then machinery decrease, तो एंट्री होगा revaluation account debit to machinery account. Decrease in the value of asset. Now third, just like asset, liabilities can also reduced or increased as compared to market value. यानी कि बैलेंस शीट का वैल्यू बुक वैल्यू के साथ हमारा मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन में जो लायबिलिटी का वैल्यू है उसको कंपेयर करना है किसके साथ? बैलेंस शीट का वैल्यू के साथ। तो इसमें क्या होगा? आइदर द लायबिलिटी विल इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। ये भी हो सकता है कि हमारा नो चेंजेस इज देयर। सपोज 20,000 creditors in the balance sheet and also 20,000 book current value of the creditors is 20,000, so no increase no decrease, but generally हम लोग देखते हैं कि increase या decrease होता है। तो क्या एंट्री होगा? फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज द एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू liabilities account, revaluation account debit to liabilities account. Okay, liability increase, that is why liability credit as per rule of entries, journal entries. Revaluation account credit, liabilities account credit, and revaluation account will be debit. Once again, for increase in the amount of liabilities, the entry will be revaluation account debit to liabilities. Narration, increase in the amount of liabilities. And the four entry, for decrease in the amount of liability, opposite entry कर दीजिए हमेशा liabilities account debit to revaluation account, liabilities account debit to revaluation account, decrease in the amount of liabilities. Okay, for an unrecorded asset, what is the meaning of unrecorded asset? If any asset is not recorded in the balance sheet earlier but now you have to record it. Suppose किसी भी तरह का डेटर्स या बिल्डिंग या एसेट जो पहले हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया गया बट नाउ इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, तो व्हेनेवर एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड पर्टिकुलर एसेट्स शुड बी डेबिटेड, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई एसेट शुड बी डेबिटेड। आपने एसेट को रिकॉर्ड नहीं किए थे, नाउ यू हैव टू रिकॉर्ड द एसेट। क्लियर? इसलिए एसेट को डेबिट करना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन, अनरिकॉर्डेड एसेट बॉट इनटू बुक। फॉर एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसके लिए जब कोई लायबिलिटी हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं, अब हम लायबिलिटी रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, लायबिलिटी नाउ शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो लायबिलिटी विल इंक्रीज। लायबिलिटी इंक्रीज होने से हमेशा लायबिलिटी क्रेडिट एंड revaluation account debit to liability. Unrecorded liability bought into books. The narration will be unrecorded liability bought into books. Now, after passing these entries in the revaluation account, there should be either profit or loss on revaluation. So, for distribution of profit or loss on revaluation,
एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे प्रॉफिट होने पे. नरेशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब क्या हुआ, आइदर प्रॉफिट हो या लॉस हो, whatever the result outcome it should be transferred to partners capital account. किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में एंड ओल्ड पार्टनर, ये चीज याद रखना है. ओके और लॉस होने से क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन केस ऑफ लॉस. इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट होने से होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लॉस होने से होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. ओके तो दीज आर द बेसिक जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ revaluation account in the admission of a new partner. Revaluation account is prepared just before the admission of a new partner so that a clear picture about assets and liabilities can be shown before the admission of a new partner. Now let us see the format of revaluation account. This is the format of revaluation account. This side debit and this side credit, particulars amount rupees, particular amount rupees. This is the one example. Stock debit side, stock 1500 means what should be the entry, revaluation account debit to stock. लेफ्ट साइड टू होता है, राइट साइड बाय होता है. तो इस तरफ आइदर एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज. डेबिट साइड मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड सोर्स आइदर एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज. स्टॉक 1500 डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर 1000 डिक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. हमने प्रोविजन क्रिएट किए हैं डेटर्स के ऊपर, लायबिलिटी इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज होने से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू प्रोविजन फॉर बैड डेट. ओके आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी इज देयर 200, लायबिलिटी इंक्रीज. आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस इज लायबिलिटी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी 200. And credit side, plant and machinery given 3000. What does it indicate? Plant and machinery increased by rupees 3000. What's the entry? Revaluation account को क्रेडिट करना है, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट करना है. अभी हम समझाएं कि प्लांट एंड मशीनरी आपको डेबिट करना पड़ेगा जब इंक्रीज होगा, तो एसेट इंक्रीज होने से क्रेडिट साइड आता है या लायबिलिटी डिक्रीज होने से क्रेडिट साइड आता है. तो प्लांट एंड मशीनरी 3000 इंक्रीज हुआ, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ 1000 एंड सिंडिकेटर्स का वैल्यू रिड्यूस हुआ है 100. तो बाय सिंडिकेटर्स लायबिलिटी डिक्रीज, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ये चार बेसिक एंट्रीज जो हमने अभी समझाएं, वो चार बेसिक एंट्रीज यदि आप क्लियरली समझ जाएंगे तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आसानी से बन जाएगा और उसका लेजर भी बन जाएगा, जर्नल भी बन जाएगा. अब देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट साइड जोड़ दिए, डेबिट साइड जो डेफिसिट हो रहा है दैट इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. यदि डेबिट साइड पैसा घटा तो प्रॉफिट, और डेबिट साइड ज़्यादा पैसा हो गया, क्रेडिट साइड पैसा घटा, यानी कि बैलेंसिंग फिगर यदि क्रेडिट साइड रहा तो लॉस एंड बैलेंसिंग फिगर यदि डेबिट साइड रहा तो प्रॉफिट. तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन को हम लोगों ने ओल्ड पार्टनर में बांट दिए, किस रेशियो में ना, ओल्ड रेशियो में. ओके तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस 4 जर्नल एंट्रीज. ओके I think all of you must have understand clearly through this lecture that what should be the revaluation account, what should be the format of revaluation account, how we prepare the revaluation account, and what is the journal entries regarding increase and decrease of assets and liabilities, all these things. Okay, thank you.